Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. Today our topic is the chemical equilibrium. Our chapter is the chemical equilibrium and our topic is the Haber's process, which is the application of effect of concentration and different factors that affect the equilibrium position. So Haber's process and common ion effect. Haber's process is the application and common ion effect is another topic. First of all, we will know about what is the Haber's process, what are the effects on that application, means what are the effects of concentration, temperature, pressure and catalyst on the Haber's process, and what is the contribution. And so we'll start up from the Haber's process. Industrial application of Le Churchill principle. It is the synthesis of ammonia by Haber's process. What is meant by the synthesis of ammonia by Haber's process? Haber's process में actually formation होती है ammonia की from nitrogen and hydrogen, because as we know these are the gases. So nitrogen and hydrogen are converted into the ammonia and then it is liquefied. So del H is in negative minus 92.6 kilojoule. It's mean it is exothermic process, and if we know about the number of moles, then we will find about the del N. Del N is equal to product minus reactant, means number of moles of product minus number of moles of reactant. It is a product 2 moles of ammonia. So 2 minus 4, how it is 4, 3 molecules, 3 moles of hydrogen and 1 mole of nitrogen. 3 plus 1 is equal to 4. 2 minus 4 is equal to minus 2. So most important thing here is the number of moles del N, which is minus 2. Minus 2 represents that the number of moles are in negative, means the number of moles of product are in less concentration, or they are in less number, and while the reactants are higher. Reactants have higher number of moles, which are the 4. So first factor which we'll discuss is the temperature. It is exothermic. It is exothermic process. ये exothermic process है. क्यों exothermic process है? क्योंकि इसमें heat evolve होती है, heat release होती है. जब किसी भी temperature से heat release होती है, हमने already factors में पढ़ा कि जहाँ पर heat release होती है तो वहाँ पर आप क्या, इसका मतलब है सिस्टम का टेम्परेचर लो हो जाता है. टेम्परेचर लो होता है. अगर फॉर एग्जांपल अगर हम हाई टेम्परेचर लेते तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता टुवर्ड्स द लेफ़्ट. क्यों लेफ़्ट पर ये शिफ्ट हो जाता? क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है वो फेवर करता दोबारा रिएक्टेंट्स को मिलने से, मीन्स कि नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं तो इसलिए या इस साइड पर मूव कर जाता. सो इस कंडीशन में लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमने इस एप्लीकेशन में ज़्यादा हमें फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड चाहिए. क्योंकि हमें ये अमोनिया की प्रोडक्शन चाहिए, अमोनिया प्रोडक्ट चाहिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी जनरेट हो सकता है कि कैसे आप प्रोडक्ट इंक्रीज की कंसंट्रेशन या आप कैसे प्रोडक्ट इंक्रीज कर सकते हैं. तो प्रोडक्ट को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? सबसे पहले आप इनको देखते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स देखते हैं कि टेम्परेचर या तो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए. तो इस रिएक्शन में del N नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए. जब टेम्परेचर लो होगा, लो फेवरेबल होगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड इन डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आपके पास यहाँ पे एक्सोथर्मिक जो है वो लो टेम्परेचर फेवर कर देगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को. सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल होगी एट लो टेम्परेचर. अब सूटेबल टेम्परेचर एक्सोथर्मिक के लिए जो फेवरेबल है वो क्या है हमारे पास? यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो लेस हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन में लो टेम्परेचर जो होता है वो फेवर करता है टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ़ मोल्स.
जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस साइड पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स कि अमोनिया के मोल्स कम हैं, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या रिएक्शन जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर जो हैबर्स प्रोसेस है उसको फेवरेबल है। नेक्स्ट इज द प्रेशर। प्रेशर में भी सेम हम नंबर ऑफ मोल्स ही देखेंगे, डेल एन फाइंड करेंगे, -2 है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर का चेंज मीन्स के रिकॉल करते हैं जो हमने पिछले फैक्टर्स में पढ़ा था कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्स है। अब जब वो डिक्रीज़ हो जाता है, मिनिमाइज करता है इफेक्ट को तो करने के लिए, तो इस वजह से रिएक्शन जो होता है शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट। क्यों राइट होता है? क्योंकि राइट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, रिएक्शन उस साइड पर जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं। वो कैसे? इस तरह से कि आप जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं सिस्टम का तो नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड पर हायर नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उनका क्या होगा, वहाँ पर वो नंबर ऑफ मोल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और वॉल्यूम को कम करने की। अब यहाँ पे क्या है कि शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स। सो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर कम है, प्रोडक्ट की तरफ कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और जब फॉरवर्ड जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अमोनिया की होगी, रिएक्टेंट ज़्यादा कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ज़ाहिर वॉल्यूम कम हो जाता है। कैसे? इसके नंबर ऑफ मोल्स वरना क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, वो ऐसे जितनी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करे होते, लेकिन जब आप उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, मीन्स वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाता है रिएक्शन आपस में मीन्स कि उनके दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलिजन्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है, वो जल्दी से जल्दी आपस में मॉलिक्यूल कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जो होता है वो फेवरेबल होता है। और -2 जब डेल एन है तो इट्स मीन जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे -2 डेल एन होगा तो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। अब यहाँ पे जो प्रेशर हम ले रहे होते हैं 200 to 300 ATM लेते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन इसके लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एंड टेम्परेचर कम होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने देख लिया कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे कम और प्रेशर ज़्यादा, तो ये ऑप्टिमम कंडीशन हैं। नॉर्मली जब टेम्परेचर जो कम किसी सिस्टम का करते हैं तो इसका जो यील्ड तो अमोनिया की ज़्यादा हो गई है, लेकिन यील्ड ज़्यादा होने के साथ साथ रेट कम हो जाता है। वो क्यों कम होता है? क्योंकि जो टेम्परेचर कम हो करते हैं तो वो बहुत स्लोली रिएक्ट कर रहे होते हैं, बहुत स्लोली आपस में कंबाइन हो रहे हैं, बहुत स्लोली रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन तो ज़ाहिर है यील्ड हमें आएगी लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, उसका रेट स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखते हैं तो उसे इकोनॉमिकली देख रहे होते हैं कि कौन सा रिएक्शन किस तरह से इकोनॉमिकली होगा और यील्ड कितनी ज़्यादा होगी। अब ज़ाहिर हमें यील्ड तो मिल गई लेकिन ये अनइकोनॉमिकल हुआ, उसको आप इकोनॉमिकल करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ करते हो, जो कि आयरन कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। आयरन कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, जिसकी वजह से वो जल्दी रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे इसको लिक्विफाई किया जाता है अमोनिया को बाय कूलिंग रेफ्रिजरेशन। कॉइल्स होती हैं वो कूल करना शुरू कर देती हैं, -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मीन्स कि लिक्विफाइंग या जो लिक्विड होता है लिक्विड में कन्वर्ट होती है अमोनिया वो -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इतने पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो मिलेगा। अब जो दूसरा हमारे पास इस वजह से रिमूवल, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट किस तरह ज़्यादा आता है बाय कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ। अब कॉन्टिन्यूअल रिमूवल किस तरह से होता है, बार बार आप क्या करें कि वहाँ से बार बार उसको एब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, अमोनिया को निकालना शुरू कर दें, प्रोडक्ट को बार बार रिमूव किया जाएगा। जाहिर है जब प्रोडक्ट कंसनट्रेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। मीन्स यहाँ पर हम कंसर्न है अबाउट द कंसनट्रेशन। अब आपको पता है कि कंसनट्रेशन जिस साइड पर कम करते हैं तो रिएक्शन कम कंसनट्रेशन की तरफ आता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्शन हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, तो कम कंसनट्रेशन की तरफ आएगा तो फॉरवर्ड रहेगा। इस वजह से हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ और सिर्फ अमोनिया लिक्विफाई होगा, बाकी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिक्विफाइंग पीरियड जो टेम्परेचर है जिस पर वो लिक्विफाई होते हैं तो वो बहुत लो होता है, तो इसलिए ये दो लिक्विफाई नहीं होंगे, ये दोबारा से चैम्बर में आ जाएंगे, जबकि अमोनिया लिक्विफाई होकर हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट इज द फिनोमेना।
अब ये एक फिनोमिना है जिसमें आप दो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो लिया जाता है वो कम आयोनाइज होता है, हमेशा उसे रिवर्सिबल के फॉर्म में लिया जाता है, मीन्स के वो इक्विलिब्रियम पर होता है और बहुत कम आयोनाइज, इक्विलिब्रियम पर जो चीज़ होती है वो बहुत कम आयोनाइज हो रही होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि सोडियम फ्लोराइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसी का सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फॉरवर्ड जाएगा। बुक में इन्होंने इसका भी रिवर्सिबल दिया हुआ है लेकिन इट इज़ फॉरवर्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा फॉरवर्ड जाता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता। तो सोडियम आयन एंड फ्लोराइड आयन दोनों के फ्लोराइड आयन आएंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देख के देन इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। द फिनोमेना इन विच द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और सॉल्बिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड by the addition of highly soluble electrolyte containing a common ion is called common ion effect। इसका मतलब क्या है कि जैसे HF इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत कम आयोनाइज होगा, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या है, कम है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो, अब यहाँ पे ये बहुत कम आयोनाइज हो रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जितना सॉल्बल हो रहा है दोबारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो अब जब सोडियम फ्लोराइड इसमें डालेंगे, जितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं अगर, तो अब सोडियम फ्लोराइड एक जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये आयोनाइज होगा इसके पास भी कॉमन आयन है, क्योंकि कॉमन आयन हम लेते ही तब उसी का सॉल्ट लेते हैं ताकि सेम आयन प्रोड्यूस हो। जब सेम आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो कॉमन आयन आ जाएंगे। कॉमन आयन क्या करेंगे, जब उसी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आप सोडियम फ्लोराइड जब आयोनाइज होगा तो वो क्या करना शुरू कर देगा, फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लोराइड आयन इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या करेंगे, अगेन हाइड्रोजन के साथ मिलकर दोबारा इसको शिफ्ट करवा देंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, मीन्स के हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो ये जितने आयन्स अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड के आयोनाइज हो रहे थे तो उतने ही तकरीबन आयन दोबारा से इसे रिएक्टेंट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रेस हो रही है, मीन्स सुप्रेस का मतलब कि दब जाती है, कम हो जाती है। एक्चुअली तो हो रही होती है आयोनाइजेशन, बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि ये स्टॉप हो गई है हाइड्रोजन फ्लोराइड की आयोनाइजेशन। किस तरह स्टॉप हो जाएगी कि जो सोडियम फ्लोराइड अपने आयंस क्रिएट करके, अपने आयंस प्रोड्यूस करके दोबारा से उन्हें क्या करेगा, लेफ़्ट साइड पर कन्वर्ट करवा देंगे, जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोजन फ्लोराइड नॉर्मली तो आयोनाइज हो रहा होगा लेकिन उसकी आयोनाइजेशन कम हो जाएगी बाय सोडियम फ्लोराइड, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन ने क्या किया, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को, डिसोसिएशन को अफेक्ट किया और उसको दोबारा से कन्वर्ट करवा दिया। अब हम डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड डिक्रीज हो जाती है, सुप्रेस हो जाती है बाय डिसोसिएशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। अब हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जो जब ऐड किए जाते हैं किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन में, लाइक सोडियम फ्लोराइड आपने लिए हैं, तो और ऑफ लेस सॉल्युबल सॉल्ट कंटेनिंग अ कॉमन आयन, अगर एक और आप सोल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई सॉल्युबल सॉल्ट है जो दोबारा से अपने कॉमन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको आप ऐड कर देते हो एक सोल्यूशन में जिसमें कम सॉल्युबल सॉल्ट था, कंटेनिंग आयन था, तो वो क्या कर देता है, वहाँ पर डिसोसिएशन उसकी डिक्रीज कर देता है। तो सप्रेस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ सोडियम फ्लोर, अब वो उसको डिक्रीज कर देता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है जो एग्जाम्पल है, लाइक पोटाशियम पर क्लोरेट KClO3। अब ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, KClO3 पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट इसकी डबल एरोज होते हैं। अब साथ में पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम एंड क्लोरीन, ये क्लोराइड दोनों में ये इट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है। जब आप इसे ऐड करते हैं, ये देखिए दोनों में जो कॉमन आयन है पोटाशियम है, इसके ऐड होने की वजह से जो इसकी आयोनाइजेशन हो रही थी वो सुप्रेस हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन में पोटाशियम ज़्यादा प्रोड्यूस होकर दोबारा से क्लोरेट के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बनाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इसकी जो अपनी आयोनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे भी जैसे गिवन है कि ली-चार्शियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पोटाशियम क्लोराइड जो है मिलकर दोबारा से पोटाशियम क्लोराइड बनाना शुरू कर देंगे, और ये क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स आउट हो जाएंगे। जब HCl उसमें ऐड किया जाता है, पास किया जाता है सोल्यूशन में से, क्योंकि हमने कहा था ये एक क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं।
अब जब इसके अंदर से HCl को पास किया जाता है सोल्यूशन NaCl, अब ये वाला सोल्यूशन है हमारे पास NaCl जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि HCl यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। अब यहाँ पे ब्राइन का सोल्यूशन NaCl का इसमें ऐड किया जाता है, तो इट कॉजेज द इंक्रीज टू इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे देखें ये भी इन दोनों में क्लोराइड आयन ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे, उसकी जो आयोनाइजेशन है उसको सुप्रेस कर देंगे। अब क्लोराइड आयन विल कंबाइन विद सोडियम आयन टू रिफॉर्म द सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट है। अब आपके जो सेल्फ असेसमेंट है, अमोनियम क्लोराइड इज अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना रहे हैं। इफ़ द सॉल्ट इज एडेड, अब यहाँ पे आप इसका सॉल्ट ऐड कर दें तो क्या होगा। अब ये आपने खुद आपकी सेल्फ असेसमेंट आपने करनी है, यहाँ पे सॉल्ट इसका ऐड करना है और आपने फिर से उसकी सुपरेशन, आपको पता है सॉल्ट आप क्या ले लेंगे, अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे, तो वहाँ से अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम प्रोड्यूस होगा जो कि इसका कॉमन आयन होगा और दोबारा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देगा, तो इसे आप क्या कहते हो, इट इज़ कॉमन आयन। एंड ये दूसरा कार्बोनिक एसिड वाला भी है, हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनेट आयन कर देते हैं। What will happen if the strong electrolyte such as सोडियम कार्बोनेट इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो सेम वही सोडियम आयन बनेंगे, कार्बोनेट आयन बनेंगे, कार्बोनेट आयन दोनों में कॉमन है, वो सुप्रेस कर देंगे यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन को। ओके, थैंक यू क्लास। आप लोग ये असेसमेंट करके लाइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।